Good morning, children. We have finished chapter number 3 in our last class, and today we are going to do chapter number 4. Chapter name is Factors and Multiples. Before starting this chapter, you should know how to calculate factors and multiples. You already have done this concept in class 4. Let us revise again. We have a number 12. How to calculate its factors? Its factors are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Factors means के 12 किस किस टेबल में आता है, किस किस नंबर से डिविजिबल है. 1 के टेबल में आएगा, 2 6 ज़ा 12 2 के टेबल में, 3 4 ज़ा 12 3 के टेबल में, 4 3 ज़ा 12 4 के टेबल में, 6 2 ज़ा 12 6 के टेबल में एंड 12 1 ज़ा 12 एंड 12 के टेबल में. क्लियर? सो 1 2 3 4 6 and 12. These are factors of 12. Next, multiple of 12. Calculate 5 multiples of 12. Means we will write table of 12 up to 5 numbers. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60. So 12, 24, 36, 48 and 60. These are 5 multiples of 12. Clear? Now our topic is HCF, means highest common factor. What is HCF? It is the greatest number which divides two or more numbers without a remainder. HCF क्या है? जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर के, मीन्स उसका कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होता. इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 or more numbers without a remainder. Next, its methods. There are 3 methods of calculating HCF. First is factor method or by listing all the factors. Second method is by prime factorization method. Third is by long division method. Let us take an example to understand all these methods. First example is HCF of 35 and 28. Method first by factor method or by listing all the factors. 35. Factors of 35 are 1 के टेबल में आता है 35, 5 के टेबल में 5 7 are 35, 7 के टेबल में 7 5 are 35 एंड 35 के टेबल में 35 1 are 35. जब भी आप फैक्टर बनाओगे जिस नंबर के उसमें 1 और वो नंबर तो आएगा ही, और बाकी जिस पे डिविजिबल है वो नंबर आपने यहाँ लिखनी है. सो 35 के फैक्टर्स बने 1 5 7 एंड 35. नेक्स्ट इज 28. फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 एंड 28 तो आएगा 1 2 4 7 14 and 28. Now HCF of 35 and 28. We will check the common factors of these numbers. Common factors check करने कौन से हैं? 1 common factor है और कौन सा common factor है? 7, जिनको मैंने सर्कल किए 1 and 7. These are common factors, but we have to calculate HCF. HCF means highest common factor. 1 और 7 में से highest common factor कौन सा हुआ? 7. So 7 is the HCF of 35 and 28.
8. Clear? It is our first method, which is factor method, or by listing all the factors. क्लियर है? जो भी नंबर गिवन होंगे उनके आपने सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं, कॉमा डाल के फैक्टर्स लिखोगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप चेक करोगे. इसमें 7 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 35 एंड 28 का. नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन, you have to solve numbers by using prime factors. Least prime number is 2. Prime number starts from 2. Prime number कौन से होते हैं? जो अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, इनका कोई और फैक्टर नहीं होते. 35 and 28. I'm solving the same sum by using second method. सेम ही स्टेटमेंट लिए मैंने. 35 and 28. 35 को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है. 35 ends with which number? 5 number or odd number. So we will divide it by 5. 5 is a prime number. 5 sevens are 35. Next 7 itself is a prime number. 7 क्या है? एक प्राइम नंबर. 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1. नेक्स्ट 28 के प्राइम फैक्टर. 28 ends with even number, so we will divide it by even number which is 2. 2 is a prime factor. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 14s are 28. Then 14 ends with an even number again, so we will divide it again by 2. 2 से डिवाइड करोगे 7. 7 itself a prime number, so 7 sevens are 7 ones are 7. Clear? Next factors of 35 are. अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें जो भी आप फैक्टराइज करते हो नंबर को, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही लिखना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 7. 5 sevens are 35. 28 को 2 into 2 into 7. 2 into 2 4 into 7 28. Clear? Next HCF. HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF के लिए कॉमन फैक्टर कौन सा है? 7. 7 as it is. 7 is the HCF of नंबर 35 एंड 28. अगर इसमें कोई और भी कॉमन नंबर होता, जैसे 2 यहाँ पे है और 2 ऊपर भी होता, तो 2 भी कॉमन नंबर था, फिर 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना था. दैट विल बी आर HCF. राइट? नेक्स्ट थर्ड मेथड इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. इट हैज सम स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज, स्टेटमेंट इज सेम. फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. जो भी नंबर स्टेटमेंट में गिवन होंगे उनमें से स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करना है. स्मॉलर नंबर 28, बिगर नंबर 35, दोनों को डिवाइड करेंगे. 28 ones are 28. Then we will subtract both numbers. 7 will be remainder. Second step is divide the divisor by the remainder. 28 is the 28 क्या है? डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. एंड 7 क्या है? रिमाइंडर. 1 कोशेंट एंड 35 इज डिविडेंड. लेकिन हमें सिर्फ डिवाइजर और रिमाइंडर चाहिए. सेकेंड स्टेप क्या है? डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या करेंगे? रिमाइंडर और डिवाइजर को डिवाइड करेंगे. दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? रिमाइंडर. रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड. रिमाइंडर 7, डिवाइजर 28. 7 4s are 28. Now remainder is 0. So the last divisor is the HCF. लास्ट डिवाइजर कौन सा है? पहला डिवाइजर था 28 एंड सेकेंड डिवाइजर है 7 which is last divisor. So 7 is the
HCF. I have solved this sum by using 3 method. Answer is same. मैंने एक ही सम को 3 डिफरेंट मेथड से किए हैं. आंसर क्या है? सेम. तो आप किसी भी सम को किसी भी मेथड से कर सकते हो. अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है कि भाई फैक्टर मेथड यूज़ करना है तो फैक्टर ही करोगे. प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो ही करोगे. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. It is given in your book on page number 46. Find the HCF of 45 and 165. It is not given name of method कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कुछ गिवन नहीं है. आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो. I am solving this sum by using second method which is prime factorization method. फर्स्ट नंबर इज़ 45, सेकेंड इज़ 165. इनको आपने सॉल्व करना है प्राइम फैक्टर यूज़ करके. 45 इट एंड्स विद 5, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5 विच इज़ द प्राइम नंबर. 5 9 ज़ा 45. नेक्स्ट 9 3 से डिविजिबल है. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 itself इज़ अ प्राइम नंबर. 3 1 ज़ा 3. सो फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर कौन से बने? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1. नेक्स्ट 165. It ends with 5, so we will divide it by 5 because 5 is a prime number. 5 3 is a 15. Again 5 3 is a 15. 33 is divisible by 3. 3 is a prime number. 11 3 is a 33. Next 11 is a prime number. 11 1 is a 11. So factors of 165 are 5 multiply by 3 multiply by 11 and multiply by 1. Now HCF of 45 and 165 are. इसके लिए क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर सर्च करने हैं. 5 दोनों में आ रहा है तो 5 कॉमन फैक्टर है. 3 दोनों में आ रहा है, 3 कॉमन फैक्टर है. नेक्स्ट 3 दोबारा नहीं आ रहा और 1 है, 1 को लिख सकते हो आप. 11 नहीं आ रहा तो 5 and 3 both are common factors. We will write it as 5 multiply by 3. 5 into 3 is equal to 15, which is our answer. Clear? Next is example number 4. It is given in your book. First part is find the HCF of 140, 224 and 280. What is the first step? First step is to divide the greater number by smaller one. Smaller number 140 है, greater 280 है. इनको divide करोगे. 14 2s are 28. 0 as it is means 140 into 2 is equal to 280. So remainder is 0. Next we have 140 is the divisor and remainder is 0 here. 140 को next number से divide करना है. 140 is divisor. 141 are 140. Difference is 84 and divisor will become dividend. 84 ones are 84. इनको आगे आगे अपने डिवाइड करते जाना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता. 84 ones are 84. Difference is 6 5. Next it is a remainder. Previous remainder is our dividend. 56 को 84 से डिवाइड करना है. फिर 56 ones are 56. Difference is 28. फिर 28 को डिवाइजर अज्यूम करना है एंड प्रीवियस रिमाइंडर को डिविडेंड. 56 28 के टेबल में 56 आता है 2 पे. 28 2s are 56. सो
रिमाइंडर इज 0। इस मेथड को आपने तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इसमें हमें 3-4 स्टेप सॉल्व करने पड़े क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। लास्ट स्टेप में आया रिमाइंडर 0। देन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF? वैल्यू ऑफ HCF इज इक्वल टू लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर कौन सा हुआ? 28। HCF is equal to 28, which is our last divisor. Clear? Next, exercise number 4.1. First question is find the HCF by the factor method. Factor method means by listing all the factors of the given numbers. Do A part as a homework. I'm going to solve part B. Numbers are 81 and 90. Factors of 81. 81 के factors means 81 किस किस के टेबल में आता है? 1 का टेबल और 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट नंबर इसका ऑड है। 3 4 के टेबल में नहीं आता। 5 6 7 8 9 9 के टेबल में आता है। एंड 3 27 3s are 81 एंड 9 9s are 9 को 1 टाइम ही लिखोगे आप। एंड 81 1s are 81। सो 81 के फैक्टर कौन से बने? 1 3 9 27 एंड 81। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 90, इनको हमने कॉमास में ही लिखना है। 90 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में एंड 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में और 45 के टेबल में। 45 2s are 90 और 30 के टेबल में 30 into 3s are 90, 18 5s are 90 एंड 90 1s are 90 और 90 का कॉमन फैक्टर एक 9 भी है और 10 भी आया। 10 9s are 90। 81 और 90 में से कॉमन फैक्टर 1 कॉमन फैक्टर है और 5 नहीं है। 27 9 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कौन से हुए? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 90 आर 1 एंड 9 बट द HCF इज मीन्स इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 9। सो 9 इज द HCF ऑफ 81 एंड 90। नेक्स्ट सम नंबर 2, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने HCF सॉल्व करना है। 18 2 के टेबल में डिविजिबल है। 2 प्राइम नंबर भी होना चाहिए, 2 प्राइम नंबर है। 2 9s are 18 देन 3 3s are 9 3 1s are 3। तो 18 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। देन 54 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। 54 इट एंड्स विद 4 विच इज़ अ इवन नंबर एंड 2 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 से डिवाइड करेंगे। 27 2s are 54। इट इज़ डिविजिबल बाय 3 3 9s are 27 then 9 is divisible by 3 3 3s are 9 then 3 1s are 3। तो 54 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 1। नेक्स्ट 63 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व। इट इज़ डिविजिबल बाय 3 21 3s are 63 then 7 3s are 21 7 is a prime number itself 7 1s are 7
Now we will write these factors as factors of 18 are 18 के factors 2 into 3 into 3 into 1. 54 के factor 2 into 3 into 3 into 3 into 1. 63 के factor 3 into 3 into 7 into 1. Then common factors for HCF. Common factors solve करने हैं. सर्च करेंगे 3 3 3 then 3 3 3. 2 times 3 occurs in each number. So we will write it as 3 multiplied by 3, which is equal to 9. So 9 is our common factor or HCF among 18, 54 and 63.